ہمارے ولاگ کو سننے سے پہلے آپ یہ یقین دہانی کر لیجئے کہ کیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی ہمارے پیغام کو پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مرتضی وہاب صاحب، آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ حرکت جو آپ نے کی ہے، آپ نے کے الیکٹرک کے ساتھ میونسپل ٹیکس وصول کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ ابھی عدالت کا فیصلہ ہونا ہے اور آپ نے عدالتی فیصلے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ کر لیا اور عدالتی فیصلے سے اس کو مشروط تو کر دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ عدالتی فیصلے کے انتظار میں کیوں نہیں رہے؟ عدالت کا فیصلہ کیوں نہیں آنے دیا؟ ایسی کیا جلدی تھی کے الیکٹرک کو یا آپ کو، یا کے الیکٹرک کے ساتھ کوئی کمیشن تھا؟ کیا معاملات تھے جو آپ نے اس قدر جلد بازی دکھائی؟ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم پرائیویٹائزیشن کے مخالف تھے، اس لیے کہ نجی املاک جو ہے وہ استحصال کرتی ہے، اور یہی بات آج ثابت ہو رہی ہے کہ نجی ادارے استحصال کرتے ہیں کے الیکٹرک کی صورت میں۔ کے الیکٹرک ایک استحصالی ادارہ ہے، اسے یوں کہہ لیجیے کہ یہ ایک اقتصادی دہشت گرد ہے، اور اس کے اوپر آپ نے طے کیا ہے۔ ذرا ہم آپ کو تفصیلات تو بتا دیں کہ اب یہ اہل کراچی پر تو پہلے ہی یہ بجلی گراتا رہا ہے، بجلی کی بل گراتا رہا ہے، پھر یہ لوڈ شیڈنگ بھی کرتا ہے، پھر بے انتہا بل بھی بھیجتا ہے۔ گزشتہ 7 مہینوں میں اس نے 19 روپے پر یونٹ اضافہ کیا ہے، اور کئی مراحل میں یہ یونٹ میں اضافہ کرتا رہا، اور ان کی جو ریڈنگ کا دورانیہ ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے 300 یونٹ سے زیادہ یونٹ بن جائے تاکہ دوسرا سلیب لگ سکے۔ تو سلیب ریٹ بھی ایک ظلم ہے، اور ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ غریب کا حق مارا جائے، بلکہ امیر آدمی یا دوسرا متوسط طبقے کا آدمی کما رہا ہے تو اس کی ساری کمائی کو چھین لینا کوئی یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ وہی ٹیکس لیجئے جو آپ کا حق بنتا ہے، لیکن یہ جو سلیب ریٹ بنا کے اور پھر فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اتنا فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر لوٹ مار مچی ہے کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ قوم کے لیے ایک سہانے روح بن گئی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکٹرک کے پر یونٹ ریٹ اتنے ہائی ہیں کہ لوگ گھروں میں بجلی اور پنکھ کا استعمال کم کر رہے ہیں، پنکھے کم چلا رہے ہیں اور ہیٹ ویو سے مرنا پسند کر رہے ہیں، لیکن کے الیکٹرک کے بلوں کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی استطاعت سے باہر ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے، اور کے الیکٹرک کی وجہ سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تھا اے سی لینے کا، تو ایئر کنڈیشن لینے کا، تو ایئر کنڈیشن بھی نہیں چلا پا رہے ہیں، اس لیے کہ کے الیکٹرک کے بل 50,000 ہزار لاکھ روپے آ رہے ہیں، اور جناب نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے بلوں کے حساب سے جو ہے وہ لیا جائے گا کہ فلاں نے اتنے یونٹ استعمال کیے۔ جناب آدھا ڈی ایچ اے آپ سمیت، آپ کے گھر سمیت سولر انرجی پر ہے، اور ان کے بل منفی آتے ہیں، تو آپ لوگ تو بچ گئے ڈی ایچ اے والے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اس طریقے سے پھر یہ کہ کے الیکٹرک کو آپ نے دے دیا بل کا انتظام۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ذرا فارمولا کیا بنایا ہے یہ دیکھ لیجئے، کہ یہ بات ہے کہ ہم کم آمدنی والوں کو اس کے ذریعے ریلیف دے رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کم آمدنی والوں کو ریلیف دے رہے ہیں؟ بجلی کا استعمال کرنا ہر ایک شخص کا حق ہے۔ کراچی میں جس طرح سے گرمی پڑتی ہے، یہاں سال کے 12 مہینوں میں گھروں میں پنکھے چلتے ہیں، تو بل تو آئے گا، اور جس تیزی سے کہ الیکٹرک کا میٹر دوڑتا ہے اسی تیزی سے اس کے ریٹ دوڑ رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ سلیب ریٹ ختم کرتے، ایک معقول یونٹ کی رقم رکھواتے، آپ تو یہ کرواتے کراچی کے لیے کے الیکٹرک سے جان چھڑواتے، اس لیے کہ کے الیکٹرک کو اب استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی کی فراہمی کرے۔ اس نے کراچی کی صنعت کو تباہ کر دیا ہے، حتیٰ کہ
कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वो भी तबाह हो गई सिर्फ के इलेक्ट्रिक की वजह से, इसके हाई रेट्स की वजह से। ये कोई तरीका नहीं था कि इस इस्तेहसाली इदारे को कायम रखा जाता। दुनिया के सामने अब कोई इनके लिए ये इस्तेहसाली इदारा है, इसके स्लैब रेट को खत्म करें, इसके मीटर्स बदलें। ये मीटर्स हुकूमत लगाए, के इलेक्ट्रिक न लगाए, इसलिए कि के इलेक्ट्रिक ज्यादा तेज चलने वाली मीटर लगाएगी और हुकूमत एक नॉर्मल, एक सही तरीके के मीटर लगाए। ये हुकूमत अपने इंतजाम में ले। ये मुझे अफसोस है कि आपने इसके साथ मुआहदा किया और अक्लमंदी मुआहदा की कि बल्दिया की जो कमेटी बनाई गई उनमें कौन से अक्लमंद लोग थे। पहले 100 यूनिट आता है वो टैक्स से मुस्तस्ना है, किसका भी 100 यूनिट आता है। 100 यूनिट से ऊपर 20 रुपए, जो 200 यूनिट तक जाएंगे और 201 से 300 तक 100 रुपए और 301 से 400 तक 125 रुपए। अब आप ये देखिए 200 से जो 300 तक जा रहे हैं, यानी 100 से 200 तक 20 रुपए और 200 यूनिट से 300 तक 100 रुपए। तो आप मुझे बताइए ये इतनी लंबी जंप कैसे? ये कहां 20 रुपए और कहां 100 रुपए। 50 रुपए होते, 75 रुपए होते तो कोई बात समझ में आती। 301 से 400 यूनिट तक 125 रुपए, 401 से 500 यूनिट तक 150 रुपए, 601 से 700 तक 175 रुपए और फिर 700 यूनिट से जितने ऊपर है उनसे 300 रुपए और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल से 400 रुपए फी बिल लिए जाएंगे। बिल, बिजली के बिल को ये पैमाना बनाना दुरुस्त नहीं है। ये आपकी जहालत की भी दलील है और आपके अपने इदारे पर कंट्रोल न होने की भी दलील है। कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले अपने बिल भेजते हैं और वसूल भी करते हैं। पानी के कनेक्शन के बिल लोग जमा भी कराते हैं। अगर इसी तरीके से बल्दिया के जो टैक्स के बिल हैं वो आ जाया करें तो लोग जमा करा देंगे, उसमें क्या परेशानी है। आप पानी के बिल के साथ ये कर सकते थे, मिला सकते थे उनको कि पानी के बिल के साथ आप ये करते और एक फ्लैट रेट रखते, 50 रुपए के टैक्स है, 50 रुपए के, और आपको बिल्कुल ज्यादा टैक्स रखने से टैक्स वसूल नहीं होते। और इस तरीके से जो बिजली का बिल वैसे ही आता है और बहुत हजारों में आता है, उसके अंदर मजीद आपने इजाफा कर दिया तो उसके ऊपर मजीद टैक्स जो है वो लगाया जाएगा और मजीद टैक्स की शरह बढ़ जाएगी, बिजली की बिल की शरह बढ़ जाएगी। और के इलेक्ट्रिक आपको ये जमाशुदा रकम दे भी देगा कि नहीं, ये इस बात की जमानत नहीं है, क्योंकि एफबीआर ने इसके खिलाफ केस किया कि 1.5 अरब रुपए का टैक्स इसने चुराया, बल्कि 1 अरब 77 करोड़ रुपए का टैक्स 2017 में इसके खिलाफ केस चलाया, केस ने पेमेंट नहीं की है। और अभी भी ये बात मशकूक है क्योंकि एफबीआर के अफसरान जो है वो रिश्वत लेते हैं, बात को छुपा देते हैं। ये हमें यकीन नहीं है कि जो बिल के बिल में जो टैक्स वसूल किए जाते हैं वो हुकूमत के खजाने में पहुंचते भी हैं या नहीं। ये आपस में ही तो बट नहीं जाते। तो ये कौमी लोगों से जेबों से रकम निकालने का ये तरीका नहीं है। और के इलेक्ट्रिक जो है वो आपके बल्दियाती दायरे के बाहर भी काम करती है, तो क्या उन लोगों से के इलेक्ट्रिक के जरिए बिल वसूल किया जाएगा? क्योंकि ये तो लगा देंगे इनका, जैसे टेलीविजन फीस जो है वो मस्जिदों पर लगा दी जाती है और टेलीविजन फीस जो है वो हमें नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान टेलीविजन को पहुंचती भी है या नहीं, कोई हमें नहीं मालूम। तो इसलिए ये कहना कि ये के इलेक्ट्रिक जो है उसके जरिए बिल वसूल करेंगे, आपको ये एहसास नहीं है कि हीट वेव से जो लोग मर रहे हैं, जो अपने एसी नहीं चला पा रहे, जो अपने पंखे नहीं चला पा रहे और मौत को मुंह लगा रहे हैं, इसका अजाब किस पर जाएगा? सिर्फ इसलिए कि के इलेक्ट्रिक का रेट ज्यादा है, बिजली का निर्ख ज्यादा है और वो उस निर्ख के हवाले से कोई फैसला कुन बात नहीं कर रहे।
कोई इनकी आवाम की बात सुनने वाला नहीं है। हमें मुर्तजा बाब साहब से ये तवक्को नहीं थी कि वो ये करेंगे। गुज़िश्ता 7 महीने में के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 19 रुपए इजाफा किया है। कराची के आवाम से इन्होंने 85 अरब 27 करोड़ 50 लाख रुपए ज्यादा वसूल किए। बल्कि ये कहा जाता है कि कराची के सार्फिन से मजमूई तौर पर साल भर में इन्होंने 106 अरब रुपए जो हैं वो ज्यादा वसूल किए, उनकी जेबों पर डाका डाला है। ये इस डाकों के जरिए आप लोगों से टैक्स वसूल करवाएंगे। इस इदारे को से तो लाइसेंस छीन लेना चाहिए था। नेपरा ने गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर अवाम की राय को जाने बगैर इसको दोबारा लाइसेंस दिया है। इस पर तो लोगों को मुकदमा करना चाहिए, लेकिन वो मुकदमा करते ही नहीं है, क्योंकि वो सियासी जमातें जो इस मौके का फायदा उठा रही थी अब वो अपने मकासद को हासिल कर चुके हैं। अब वो दीगर बड़े मकासद के लिए काम कर रही हैं। पता नहीं वो कैसे बड़े मकासद हैं जो इन मकासद को छोड़ के, अवाम की फलाह व बहबूद के काम को छोड़ के वो उसके लिए कर रही हैं। के इलेक्ट्रिक का जो एफबीआर के साथ झगड़ा था 2017 में, तो उसके अंदर उन्होंने स्टील मिल्स से 6 रुपए फी यूनिट रकम जमा करनी थी, ज्यादा टैक्स की, और एफबीआर को देनी थी, लेकिन नहीं हुआ। जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ये हो चोरी का, नादहिंदगी का, उसको दोबारा लाइसेंस दे देना। इसको तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, दुनिया के सामने ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, उसको फिर दे दिया। ये ब्लैक लिस्ट होने वाली कंपनी थी, इसको आपने दे दिया। और कहते ये हैं कि एफबीआर जो है उसकी रिश्वतखोरी की वजह से, अफसरान की नाअहली की वजह से मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं अदालतों में, और उनकी मालियत है 4 खरब रुपए। हो सकता है इससे ज्यादा हो। 4 खरब रुपए के टैक्स अदालतों में मुकदमात की सूरत में रुके हुए हैं और जज हजरात। मेरा तो कहना यही है कि केएमसी के टैक्स आप खुद वसूल करें, कम से कम रकम रखें। आप 100 रुपए भी रखेंगे तो लोग दे देंगे, लेकिन 100 रुपए सालाना होगा, माहाना होगा, जो भी होगा। अगर आप 1200 रुपए सालाना लेना चाहते हैं, 1000 रुपए सालाना लेना चाहते हैं तो लें, मगर के इलेक्ट्रिक के जरिए अपने बलबूते पर, अपने तरीके से और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। जब से आप मेयर बने, कराची शहर में कहीं भी आपके मेयरशिप के होने का वजूद नजर नहीं आ रहा है। कायदे आजम के मज़ार जैसी जगह पर गंदगी का ढेर, गटर उबल रहे हैं और सड़कें टूटी हुई हैं, नशई इन जगहों पर लेटे हुए हैं, पार्क के अंदर कायदे आजम के मज़ार की टाइल्स टूटी हुई हैं। तो आप शहर कायद का क्या ख्याल करेंगे जब आप मज़ार कायद का ख्याल नहीं कर सके। और हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से ये अफसोस है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नारा सोशलिज्म है, लोगों की फलाह बहबूद है। इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है। रोटी और कपड़ा और मकान लोगों के लिए न रोटी न कपड़ा और न मकान, और मकान के अंदर रहना मुश्किल कर दिया है। कराची के अंदर जो हीट वेव चल रही है उसके अंदर तो आपको चाहिए था कि के इलेक्ट्रिक को कहें कि वो अपने यूनिट का रेट इतना नीचे गिरा दे कि लोग आराम से एयर कंडीशन भी चला सके, पंखे भी चला सकें और आराम से रह सकें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये फलाह का काम है और अल्लाह फलाह के काम की तौफीक देता है। मेरा मकसद किसी की दिलादारी नहीं है, लेकिन आपके इस काम से हमारी दिलादारी हुई है। और लोगों ने ये तक कहा है कि जनाब अगर ये आप रेट बढ़ाते रहे बिजली के लिए, और पाइप के माहिरीन जो पाकिस्तान का
खुद का कायम करता हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है पाइड, वो कहता यह है कि अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो लोगों के बिसात से बाहर हो जाएगा अदायगी करना। बिजली के निर्ख कम कीजिए, टैक्सों की शरह कम कीजिए और ज्यादा वसूलियां कीजिए। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि ये तरीक़ाकार आप जो कुछ अपनाए हुए हैं ये अच्छा नहीं है। आप टैक्स जो है वो अपने बलबूते पर लीजिए, कोई इनकार नहीं करेगा टैक्स देने। 1000 रुपये सालाना टैक्स दें, जो गरीब इलाके हैं उनसे 500 रुपये सालाना ले लें, कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन ये न कीजिए कि बिजली के बिल में लगा दीजिए ताकि लोग जो है इलेक्ट्रिक के साथ साथ आपको भी बदलवाएंगे। हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए।